Hello friends, welcome once again. In this video, I'll take a question from one of the candidates on yesterday's video, which I titled, "What is the syllabus for SSB interview?" The aim is to, I got a lot of comments, almost 130 plus comments overnight, and I saw the mixed reactions and many revelation in the sense that कैंडिडेट्स भ्रमित थे, आज तक पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहे थे. सो इन दैट वे आई एम वेरी हैप्पी कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि एसएसबी का सिलेबस इज़ नॉट टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी. सो उसी रेफरेंस में एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ. बिफोर आई टेक दैट आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन. इन पुणे देयर इज़ ए कॉलेज, राजश्री साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. They have an induction program going on from 1st July to 17th July, and tomorrow I am conducting a workshop for them, and the workshop is self-awareness key to success. Now उसमें उनके काफ़ी सारे faculties भी है. I actually am a regular speaker for them on self-management life skills के ऊपर. So it is tomorrow 16 July 2020 at 11:30 AM. Now fortunately they have permitted me to get my participants also to attend that, since it is an online platform. As long as they have whatever seats are available for them, usko karne ke baad jisko bhi seats available hai, you can attend. So they have allowed that. Only thing is you have to keep your microphone mute, and 11:30 the workshop is starting. It will help you in identifying your own strengths and weaknesses. एंड ये जो सेल्फ अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, सिंस यू गोइंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, द जर्नी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम नोइंग योर सेल्फ. इट विल हेल्प यू इन दैट. सो प्लीज़ बी अवेल, इफ यू फ्री प्लीज़ अटेंड दैट. ओनली कंडीशन इज दैट प्लीज़ डोंट पुट योर माइक्रोफोन ऑन, and the batch is, this seminar is starting at 11:30 AM. So I will give you the instruction at the end of it कि इसमें क्या करना है. So tomorrow 11:30 AM. Further details I'll give you at the end of the this presentation. Now this video I'm taking a comment by Kuljit Mahalwar. Now I don't know where is this boy from, or actually मैंने इसलिए लिया because he has put this comments at 3 places. One, he has put an independent comment, then he has put it under somebody's comment as a reply to his comment, and directly to me. So I thought, and I told him, your concern I understand, and I'll make a complete video for the benefit of others. So let us listen to Kuljit. Now Kuljit has actually commented on the speech given by Dr. Manas K. Mandal, director, DIPR, ex-director, where he mentioned that I control the service selection system, but if I go, I'll fail 100 times. If I go, I'll fail. Something like that he said yesterday's video. If you have not seen, I'll put it in the I button. So this is the feedback by him, or the question asked by him. Respected sir, if Dr. Manas K. Mandal cannot clear the SSB, why DIPR makes too tough SSB procedure? Because I am an average student in the studies, communication, etc. Next he says, I am very passionate to join armed forces, and sometimes it is very difficult to clear written CDS, NDA, etc. An average candidate take time to clear a written examination in SSB. We are thrown out on the first day. He is talking about the stage 1. My question is, I am a villager boy. From my village, no one has an officer in the armed forces. Matlab, nobody from the village is a service officer. So we, village boys, don't have the right to become an officer. We are born only for Sipahi. So that's a question. Now it's a pain. It's a very emotionally charged question. So Kuldeep wants to know why DIPR has made the selection process so tough, where even Dr. Manas K. Mandal cannot clear, and he is a village boy. क्या वो सवाल है कि क्या मैं अफसर नहीं बन सकता, मैं जवानी बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? सो कुलदीप, पहली बात तो ये है कि आप जवान बनने के लिए नहीं बने हो. आप जो बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप गांव के हो या शहर के हो, हर जॉब का एक जॉब रिक्वायरमेंट होता है. जॉब रिक्वायरमेंट मतलब एक अपेक्षा होता है. अगर आप कारपेंटर हो तो कारपेंट्री आनी चाहिए, आप प्लम्बर हो तो कारपेंटर के पोजीशन के लिए नहीं जा सकते ना. आपकी बात यहाँ तक समझ में आता है कि अगर एक विलेज बैकग्राउंड के लड़के हो या लड़की हो
तो आपका एक्सपोजर लेवल कंपेयर टू सिटी के बच्चों से थोड़ा सा कम होता है, बट उसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं हो सकता। सिटी के बच्चे क्योंकि सिटी में रहते हैं, उनका एक्सपोजर लेवल ज़्यादा है, थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स बढ़ जाता है, थोड़ा उनके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं, बट इसका मतलब ये कहीं नहीं बोला जा सकता कि वो आपसे बेहतर है या आपसे ख़राब है, वो आपके निजी गुणों के ऊपर है ना। जहाँ तक रही बात कि क्या आप सिर्फ सिपाही बनने के लिए, नो, आप सिपाही नहीं, आप तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हो। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर possibilities simply because of your rural background। हालात आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपके फेवर में होनी चाहिए। बाहर की परिस्थिति आपके मनस्थिति को विचलित ना करे, पहला तो इसका ध्यान रखना। और दूसरी बात, जहाँ तक डॉक्टर मानस के मंडल की बात बोली या DIPR ने इतना प्रोसीजर टफ क्यों बनाया है ना, DIPR का रिटर्न में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। NDA CDS का रिटर्न इज़ नॉट बाय DIPR, वो UPSC करता है जैसे सिविल सर्विसेज करता है, और अगर आप उसको क्लियर नहीं करते दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सिविल सर्विसेज अपने स्टैंडर्ड को आपके लिए नीचे नहीं करेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड को सिविल सर्विसेज के मुताबिक ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर ये बात आपको समझ में आए या बाकियों को समझ में आए तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजना। आप एवरेज हो, अबव एवरेज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना एक्सपेक्टेशन को उनके बराबर लाना है, ना कि आपके बराबर वो अपने आप को लेके आएंगे। वो नीचे नहीं आएंगे, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल है कि वी विलेज बॉय डोंट हैव द राइट टू बिकम एन ऑफिसर। यू डेफिनेटली हैव, और बहुत सारे लड़के लड़कियां बनते भी है। सो आर वी ब्रॉन टू ओनली बिकम ए सिपाही? पहली बात तो बच्चे, सिपाही बनने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि मैं भी एक सिपाही से बना हूँ। क्योंकि सिपाही अपनी जगह में, ऑफिसर क्या करेगा अगर उसके नीचे सिपाही ना हो? ऑफिसर एग्जिस्ट बिकॉज सिपाही एग्जिस्ट, एंड दैट्स अ म्यूचुअल वो। सो डोंट डिमीन बाय सेइंग कि क्या सिपाही बनना खराब है। नो, मैं तो खुद सिपाही हूँ, तो उसमें मुझे तो फक्र ही है कि मैं एक सिपाही से बन के ऑफिसर बनाऊँ। बट रही बात तुम्हारा ऑफिसर बनने की, बन सकते हो। आई डोंट नो तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तुम्हारा विलेज में क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, एजुकेशन का स्टेटस है, नहीं पता। मैं इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, और वो वीडियो जो है वो एक लड़के का है जो कि खम्बम का है, आंध्र प्रदेश का है ना। ये लड़का है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी बोलने से लगता है कि पता नहीं क्या है, SSB की बात है। हम इस लड़के को देखेंगे, और इस लड़के के बारे में जो भी वो अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, वो देख के आप समझने की कोशिश करना कि इफ़ नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी, इसके अंदर कुछ गुण दिखते हैं। इच्छा शक्ति एक वो शक्ति है ना बच्चे, कुलजीत, सारी कमियों को दूर कर देगा। आपके हालात को, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपके पढ़ाई की इंटेलिजेंस की कमी, सब चीज़ की भरपाई कर सकता है अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो। तो ज़रा इसको पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये खम्मम लड़के का है, आंध्र प्रदेश। इस वीडियो को ज़रूर देखना।
सो कुलजीत, इस बंदे की कहानी को सुनो। 9 घंटे इसके गांव में बिजली नहीं रहता, पैसे नहीं है, वो गड्ढा खोदता 80 रुपये पर डे, लाइब्रेरी से उधार लेके पढ़ता है, अभी काउंसलिंग के लिए जाने के लिए पैसा नहीं है। एंड लुक एट द इंस्पिरेशन। और अगर आप बोलो मैं गांव का लड़का हूँ, मुझे वो सहूलियत नहीं है, मेरे पास इंग्लिश नहीं है, सब अपनी जगह सही है, बट आई थिंक आप इस करिकपाड़ू लड़के जो है इससे बुरा तो नहीं होंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस ऑन दिस एंड्रॉयड फोन, आई थिंक यू आर बेटर देन दिस बॉय। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस बॉय एंड यू इज़ द इच्छा शक्ति। गोल आपने भी सेट किया है, गोल उसने भी सेट किया है। गोल सेट करने से नहीं है, उस गोल को पाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि यू नो आई एम डिफिकल्ट टू क्लियर, आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। सो इफ़ यू आर पैशनेट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रोपोर्शनेट एनर्जी इनसाइड यू। दैट एनर्जी इज़ वॉट इज़ गोइंग टू पंप यू। हालात के भरोसे में मत बैठो। अगर हालात के भरोसे में बैठोगे तो फिर आप बैठे रहोगे। बाहर की परिस्थिति आपके मनस्थिति को हिलाना नहीं चाहिए। दैट्स अ कंडीशन। इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो आपके ये सारे कंडीशंस को आप जो है ओवरकम कर सकते हो अगर आप अपनी इस सोच को, आर वी बॉर्न आउट ऑफ दिस इज ए हेल्पलेस सोच, दिस इज ए हेल्पलेसनेस का सोच है। नो, ये आप विक्टिम प्ले कर रहे हो। आपके माँ बाप का चॉइस आपके पास नहीं है, वो तो भगवान ने जिसके घर में पैदा कर दिया। नाउ द चॉइस इज व्हाट यू डू नाउ, वहाँ पे आपका चॉइस है। सो डॉक्टर मानस मंडल अपने DIPR के स्टैंडर्ड को आपके और आपके बैकग्राउंड के लिए नीचे नहीं करेंगे। आपने अपने स्टैंडर्ड को उस कदर उठाना है कि उनको मजबूर कर देना कि वो उस गाँव के इस लड़के को, कुलजीत को रेकमेंड करे। सोच को बदली करो। तो इसके बारे में आगे भी बात करूंगा। और क्यों ऐसा आप बोलते हो कि यहाँ पे वाई DIPR हैज़ मेड टफ SSB प्रोसीजर। DIPR ने ऐसा टफ SSB प्रोसीजर नहीं बनाया, वो एक ज़रूरत है, जॉब रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूँ कुलजीत कि एक घड़ा बनाना हो तो फिनिश प्रोडक्ट घड़ा है, तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो आप डेफिनेटली बोलोगे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आपको क्ले चाहिए। इस क्ले की जगह में अगर आप खेत की मिट्टी यूज़ करोगे, खेत की मिट्टी, तो उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट टफ SSB प्रोसीजर, इट इज़ अ जॉब रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे एक रेत लेके आ गए तो घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। रेत का काम अलग, खेत की मिट्टी का काम अलग, और सीमेंट का काम अलग, और चिकनी मिट्टी का काम अलग। सो चिकनी मिट्टी इज़ द रॉ मटेरियल, एंड जब तक वो रॉ मटेरियल सही नहीं होगा तो ये पॉटर्स व्हील से उसको घड़ा नहीं बना सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर रेत बोले कि मेरे को भी घड़ा बनने का बहुत पैशन है, तो नहीं बन सकता, क्योंकि रेत का काम घड़ा बनना नहीं है। रेत का काम बिल्डिंग में काम करना, उसके काम और भी है। सो ये आपका सवाल बहुत गलत है कि DIPR ने इतना टफ क्यों बनाया। इट इज़ अ जॉब रिक्वायरमेंट। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपको तलवार बनाना है तो आपको लोहा चाहिए रॉ मटेरियल में। आप बताओ, इस लोहे की जगह में अगर आपने यहाँ पे एल्युमिनियम डाल दिया तो क्या ये एल्युमिनियम इस आग में तप के तलवार बन जाएगा? अगर बन भी गया तो ये अपना काम कर पाएगा? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि DIPR ने प्रोसीजर इसलिए टफ नहीं किया कि आप जैसे रूरल कैंडिडेट्स को बाहर रखने के लिए, वो एक जॉब का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि तलवार जब बनेगी तो तलवार में वो ताकत चाहिए। अगर इसको मान लो आपने तलवार को गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, यहाँ पे देखो, क्या गोल्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप खुद बताओ मुझे, क्या आप गोल्ड से तलवार बना सकते हो? शक्ल आ जाएगा, लेकिन जो तलवार का प्रोसेस है वही नहीं ले पाएगा। एल्युमिनियम में क्या खराबी है? प्रेशर कुकर बन जाएगा, तलवार नहीं बन पाएगा। कॉपर, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो SSB से नॉन रेकमेंड होने का मतलब आप में कोई कमी नहीं है। अब्दुल कलाम जी नॉन रेकमेंड हो गए तो अब्दुल कलाम में कोई कमी नहीं है। उनका एक पैशन था फ्लाइंग करने का एयरफोर्स में, वो नहीं हुए क्योंकि एयरफोर्स में जो SSB के पैरामीटर्स वो नहीं बैठे। उसका मतलब उनमें कोई खराबी होता तो वो बनते कि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर। सो डोंट, दिस इज़ दिस इज़ अ विक्टिम मेंटालिटी कि क्या मैं सिपाही बनने का। हालात, यस, आपको मेहनत शायद बाकी लड़कों लड़कियों से ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट्स ओके। दैट इज़ वेयर आपको वो जो वीडियो वाला बंदे की तरह बनना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये DIPR ने आपको या आप जैसे लड़कों को सिस्टम से अलग रखने के लिए नहीं किया, वो एक जॉब का रिक्वायरमेंट है। और उस रिक्वायरमेंट में आप खुद सोचो, अगर फिनिश प्रोडक्ट अभिनंदन बनना है तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर चलेगा? इसलिए कोर क्वालिटी हाइड करना, ये सब बहुत डेंजरस ट्रेनिंग है।
कि स्प्रिंकल ऑयल क्यों, डेड बॉडी का ड्रामा, ये सब बहुत डेंजरस, ये देशद्रोह के बराबर है। क्योंकि आप एक ऐसे लड़के लड़कियों को रेकमेंड कराने की ठेका ले रखे हो जिनमें वो गुण नहीं है, कोर क्वालिटी में वीकनेस, और आप उसको बुक में लिख के बोलते हो कि उसको छुपा दो। सो बेटा दोबारा बोल रहा हूँ कुलजीत, अगर आप में दम है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव की मिट्टी हो शहर की मिट्टी हो, मिट्टी में दम होना चाहिए। और गांव के लड़कों को तो एक्चुअली अंग्रेजी को थोड़ा सा ठीक कर लिया तो उनके अंदर वैल्यू सिस्टम इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सिटी के, उनके एक्सपोजर लेवल्स आर लो, सो उनका करप्शन लेवल भी लो है। सो गांव के लड़के लड़कियां तो मैं तो बोलता हूँ अगर उनको कुछ पैरामीटर्स पे अगर शुरू से काम कर दे तो वो दे हैव बेटर, उनका फिजिकल रेजिलियंस इज मच बेटर देन सिटी के लड़के। हो तो लिफ्ट में घूमते हैं, आप लोग तो दौड़ भाग वाले हो, फिजिकल स्टडी हो आप लोग। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ अ जॉब रिक्वायरमेंट। लोहे का काम लोहा ही कर सकता है, सोने का काम सोना ही कर सकता है। इसका मतलब लोहे में कोई कमी है, सोने में कोई कमी नहीं है, इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट। इन द सेम वे जब आपको क्या बोलते हैं, अगर मिलिट्री ऑफिसर बनाना है तो वहाँ पे आपका वो पोटेंशियल चाहिए। अब वो आप एवरेज स्टूडेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो एवरेज ऑफिसर ही बोलते हैं, बट वो एवरेज ऑफिसर आपको समझना पड़ेगा किन स्तर पे। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएसबी के इस प्रिपरेशन में करना क्या है। जहाँ पे बहुत बड़ा गुमराह किया जा रहा है वो मैं आपकी बात समझता हूँ कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने जो आपको दिशा देना हम लोग भटका रहे हैं, वो हमारी गलती है, उसमें आपकी गलती नहीं है। और आपका एजुकेशन सिस्टम हमारा देश का बड़ा गड़बड़ वाला है, सो दैट इज़ देयर। तो अगर यहाँ पे पंकज पांडे जो रेकमेंड हुआ है, अगर पंकज पांडे के अंदर वो लोहा पोटेंशियल ही नहीं है ये बनने का, तो एकेडमी में ही चटक जाएगा। एकेडमी का काम क्या है, इस पोटेंशियल कैंडिडेट को एवरेज ऑफिसर कैलिबर पे कन्वर्ट करना, ट्रेनेबिलिटी का जो फैक्टर्स बोलते हैं हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट, और यहाँ पे उस पोटेंशियल को निखार के एंड प्रोडक्ट क्या है, full fledged officer. This is the average officer that we are talking. So we are not looking for an officer at the क्या बोलते हैं, at the raw material stage. So please understand, आप अपने आप को ऐसे क्या बोलो अंडर एस्टिमेट मत करो। यू हैव द कैलिबर एंड पोटेंशियल टू डू इट। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब आप सोचो, जिस तरह से तलवार के लिए ये नहीं चलेगा तो विंग कमांडर अभिनंदन जैसे हमको और फ्यूचर लीडर्स चाहिए, तो क्या ये नकली लड़के कोर क्वालिटी हाइड करके डेड बॉडी का ड्रामा बना के आने से चल जाएगा कमांड टास्क करके? नो। आपको कल का वीडियो समझ में आया होगा। और कैंडिडेट पिछले बार 2014 में 40 cadets from the NDA, they left NDA because they could not sustain the training. तो ये क्रैक SSB मॉडल इज नॉट वेरी गुड। सो प्लीज़ कुलजीत, डोंट थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस यात्रा में आपको करना क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तो है, आपको पोटेंशियल कैंडिडेट सेलेक्ट होकर कहाँ जाता है, SSB, लेकिन आप डायरेक्टली एकेडमी, लेकिन आप डायरेक्टली एकेडमी नहीं जाते, आप एक प्रोसेस से होके जाते हो। आपको वो प्रोसेस समझना पड़ेगा एंड उस प्रोसेस के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो आज इस पोटेंशियल कैंडिडेट को SSB जाने से पहले अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब काम करोगे उसके बाद जब SSB में जाओगे, मानसा वाचा कर्मना, वो आपके इस डू यू हैव इट इन यू को चेक कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन पे ना काम करके आप वो TAT WAT में, जैसे मैंने कल बताया, उसमें घुस गए। और फिर आपको ये क्या करेंगे, ये लोग आपको 5 दिन का टेस्टिंग प्रोसेस से डालेंगे। सोच के देखो, आपको इस प्रोसेस को अगर समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे काम करना है। तो ये कैंडिडेट, ये आप हो, आपने SSB का प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, उसके बाद आप SSB में जाते हो और SSB आपको TAT WAT SRT कराता, फिर वो इंटरव्यू कराता है और फिर GTO के 9 टास्क कराता है। आपको देखना पड़ेगा ये सब एक पॉइंट से जा रहा है, आपके मानसा से, जिसको कि मैं गंगोत्री बोलता हूं। और ये आपके 3 मानसा वाचा कर्मना, ये आपके गंगा है। कल के फीडबैक में एक लड़का मुझे भी गाली दे रहा था, काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, गंगोत्री, बिना उसने वीडियो ही नहीं देखा, बिना वीडियो देखा बोला इसके अंदर यही सब होगा। अरे बच्चे, यही सब होगा बिकॉज वही है, दैट्स पैराडो प्रिंसिपल। इट सेज कि आपने अगर इस एक जगह पे ठीक कर लिया तो आपका पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा SSB का। यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, और आपको इसमें पता है रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्यूज। को एक को पकड़ लिया तो एंटायर प्रोसेस विल बिकम करेक्ट। बट आप कहीं ना कहीं आज बाहर उलझ गए हो, आप इनमें उलझ गए हो, इनमें इसको कैसे ठीक करना है। नो, ये ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करोगे तो। अगर 1 को ठीक कर दिया 2 ठीक हो जाएगा। आज आप क्या कर रहे हो, 1 को ठीक नहीं कर रहे हो,
यू आर ट्राइंग टू को ठीक करना, हम इसके ऊपर बेस्ड ऑन योर फीडबैक विल मेक मोर। एंड देन अगर इस प्रोसेस से आप रेकमेंड हो जाते इन तीनों से, कर्मा वाचा मानसा से, देन आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे, मेडिकल से भी हो गया, मेरिट में आ गया, देन यू गो टू द एकेडमी। तो आपने देखा कि ये आपको इस प्रोसेस में आपको फिट होना पड़ेगा, तब जाके ये आप सीधा यहाँ से यहाँ जाने की बात नहीं कर सकते। अब इसमें आप रूरल हो, अर्बन हो, सेमी रूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन। अगर जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आपके पैशन से मतलब नहीं है, आपको इस सिस्टम के अपेक्षा में खरा उतरना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका गोल बहुत बड़ा है और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी होंगे, आप गांव के हो, कोई कहीं का है, तो और आपको पता है सिलेक्शन सेंटर साउथ के कमांडेंट जो एक्स कमांडेंट है वो बोलते हैं कि ये क्लियरेंस कितना है इस पूरे प्रोसेस से, 3.6। नाउ दैट इज़ वेरी यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या रास्ता ले रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टुडे यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, इनफैक्ट आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहे, आपका बस इतना फंसा हुआ कि बस रेकमेंड होना, रेकमेंड होना, रेकमेंड होना, इतना रेकमेंड होने के चक्कर में पड़ गया कि मीन्स बिल्कुल हम कोचिंग वालों ने उसको बर्बाद कर दिया है। अपने आप को नंबर 1 वीडियो बना रहे हैं, और आज बिकॉज पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा है, इसलिए लड़के जो खुद रेकमेंड नहीं हुए या अगर रेकमेंड भी हो गए, उन्होंने बड़े बड़े साले कैमरा लेके घूम रहे हैं, आज एकदम ब्रांड बिल्डर्स बन गए वो लोग। क्यों? बिकॉज पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा ना करना है, उन सबको TAT WAT के बात करना आता है, बस उसी में। तो कोचिंग वाले भी वही कर रहे हैं, लड़के भी वही कर रहे हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हम लोग। बिकॉज हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना DIPR ने सिखाया, असेसमेंट सिखाया, पर्सनालिटी असेसमेंट सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया। तो एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग को समझ में आया, 2 वर्ड देता हूं, मुझे इसमें बताना कि इसका मतलब क्या है, देन यू विल अंडरस्टैंड। एक वर्ड है पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये हम लोग सबको इंक्लूडिंग DRPA के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं अपने आप को? पर्सनालिटी असेसर है हम लोग। नाउ वन इज पर्सनालिटी असेसमेंट, सेकंड इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमको इंक्लूडिंग ये जो सिविलियन DIPR है, इन लोगों को और हमें भी DIPR ने क्या सिखाया है? पर्सनालिटी असेसमेंट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना नहीं सिखाया। दैट्स वाई डॉक्टर मानस के मंडल ने बोला कि अगर मैं भी इस सिस्टम में जाऊं तो मैं भी शायद इसमें खरा नहीं उतरूंगा। तो मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी असेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया था, बट आई वांट यू टू मेक ए फीडबैक ऑन दैट एंड देन आई विल टेल यू कि बिकॉज हम लोगों को पर्सनालिटी असेसमेंट सिखाया है और आज हम कोचिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा है, वो हमको आता ही नहीं, हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड मतलब पर्सनालिटी असेसमेंट के नॉलेज को रख के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, वो हमारा हाथी का दांत है। लेकिन हमारे खाने के दांत क्या है? असेसमेंट के टूल है हमारे पास। आपको समझ में आया? मैं ECG ऑपरेटर हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट, दैट इज द डिफरेंस। सो आई वांट यू टू गिव मी ए फीडबैक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी असेसमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय द नॉलेज ऑफ असेसमेंट विच हैज बीन टॉट टू ऑल। अगर आप कमांडेंट हो तब भी आपको यही सिखाया है, GTO हो तब भी यही सिखाया है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, DIPR ने यही सिखाया है। क्या सिखाया है? पर्सनालिटी असेसमेंट। डेवलपमेंट नहीं सिखाया, वो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके डेवलप करना है। सो प्लीज टेल मी पर्सनालिटी असेसमेंट वर्सेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट विल हैपन जिन लोगों को पर्सनालिटी असेसमेंट आता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं आता, वो डेवलपमेंट करना शुरू कर दे तो क्या होगा? इसके ऊपर कमेंट्स बताना, देन आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द मीन्स अडॉप्टेड विच यू हैव टू understand ki what is the approach that we people are taking in training you. This is where you have to, Kuljit, you have to understand, आज आप इस स्टेज में हो, आपको इस लूप के लिए अपने आप को एलिजिबल करना है, अपने आप को तैयारी करना है, and that has to be using correct means. Now अब तक आपको पता चल गया हो कि there are 4 dimensions of your personality: physical, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द वैल्यू सिस्टम। एंड इसके आधार पर फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। सो आपने यहाँ पे स्प्रिंकल ऑयल क्यों नहीं करना है? यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। उतना समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द प्रोसेस जो यहाँ पे दिखाया हुआ, दिस इज डेफिनेटली नॉट द प्रोसेस विच वी, मतलब ऐसा देख लो, जो भी कहीं पे भी चले जाओ, यू विल सी कि दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। दिस इज नो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस इज, ये मेरा पर्सनालिटी असेसमेंट का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो बीच का गैप है, बिकॉज आई हैव नॉट अपग्रेडेड ना, उस गैप के कारण हम क्या करते हैं? ये करा के छोड़ देते हैं आपको।
और पूरा का पूरा गंद मचा दिया इसके कारण। उसके कारण असर क्या हो रहा है, वी आर टीचिंग यू हाउ टू क्रैक दिस सिस्टम, वी आर टीचिंग यू हाउ टू क्रैक दिस सिस्टम। दैट्स वाई 3.6 क्लियरेंस है, लेकिन हम बोलते हैं 5 दिन में हम ये सब करा देंगे और आपको ये करा देंगे। दैट इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, योर गोल इज़ वेरी लॉफ्टी, यू नो 3.6 इज़ द सिलेक्शन रेट। सो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप ये कौन सा ये क्रैक एसएसबी का जो मॉडल यूज़ कर रहे हो, इसे आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग दिशाहीन भटकते रह जाओगे, क्योंकि आप लोग तड़प रहे हो रेकमेंड होने के लिए और हम उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। दिस इज़ द एसेंशियल डिफरेंस। सो Kuljit, before you feel bad about your rural background, you understand that I also have a very miserably bad start. You know, I joined the army as a सिपाही. Like you said कि क्या मैं विलेज वाले लड़के सिर्फ सिपाही बनने के लिए पैदा हुआ है? नहीं, आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन मेरा भी देखो, मेरी जर्नी में माई फादर वॉज सुबेदार मेजर इन दी आर्मी सिग्नल्स के, तो मेरे पास तो सब कुछ था, बट नालायकी किया बचपन में, 53% 10th में, 12th ड्रॉप आउट। सो देयर इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस, आई पुट इन द आई बटन। तो मेरी जर्नी को देखो, मेरा कौन सा, आई थिंक योर पॉइंट ऑफ स्टार्ट इज मच बेटर देन माई पॉइंट ऑफ स्टार्ट। आज की नहीं बात कर रहा हूँ, एट व्हेन आई वाज योर एज आई वाज मिजरेबली बैड। So look at this, I joined in the army as a 12th dropout. 12th I did after coming in the army. Then I cleared my ACC written. Then I cleared my SSB in 1990. And you think मेरा English वगैरह अच्छा था? No, it was not. But I worked. And एक चीज़ है जो डिफरेंस है between you and you, मतलब I'm not talking you as a person. Most candidates of today and me, मुझ में छटपटाहट नहीं था, मतलब रेकमेंड होना का छटपटा नहीं था। उसके कारण क्या था, फोकस था कि मतलब रेकमेंड नहीं होगा वो पहले से मान लिया, क्योंकि मेरे अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे। तो जब जो तैयारी किया उसमें पता चला मैं तो हो ही गया रेकमेंड, कैसे वो बाद में। एंड देन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो टुडे व्हेन आई शो यू माय प्रोफाइल, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव, बट इट इज़ इंप्रेसिव टुडे, नॉट एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। सो देर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी। एंड अगर आपको लगे कि मेरा जर्नी बहुत स्मूथ था, इट वॉज नॉट कुलजीत, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट। मे बी आई वॉज नॉट इन अ रूरल बैकग्राउंड लाइक यू, बट माई कंडीशन वॉज मच वर्स देन यू। देयर इज अ वीडियो आई पुट इट। सो इफ यू थिंक कि मेरा सक्सेस के पीछे कोई हार्डवर्क, फेलियर, सेटबैक, फ्रस्ट्रेशन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट कुछ नहीं है, गलत। सो मेरा जो मीन्स अडॉप्टेड था वो आज भी और तब भी, मुझे पता है कि मेरे को कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं चाहिए। और इसलिए जब आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हो, आई फाइंड माई सेल्फ इनकेपेबल ऑफ गिविंग वॉट यू आर लुकिंग फ्रॉम मी। मतलब आई फाइंड व्हेन यू पीपल कम टू SSB और फॉर मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए, आई एम नॉट फिटिंग योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका जो शॉर्टकट का रिक्वायरमेंट वो मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाला है। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग इफ आई डोंट डिजर्व, वो मेरा एटीट्यूड है। और मैं सोचता हूँ कि आपको क्यों नहीं वो एटीट्यूड है। तो मेरा और आपका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट दैट आई विल गिव यू सम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स टू क्रैक SSB. आई कैन नॉट, आई डोंट नो, आई ओनली नो वन वे, दैट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और साला हक से लो वेक्टर एफर्ट्स। सो इसलिए मुझे बहुत गाली भी देते हो आप लोग कि सर पता नहीं क्या कराते हैं। यस, आई बिलीव इन वर्किंग ऑन द रूट, ओनली देन द फ्रूट विल कम। आप क्या करते हो, रूट छोड़ो, फ्रूट चाहिए। कैसे फ्रूट आएगा अगर रूट पे काम नहीं करेंगे? सब लोग आपको क्या सोचना बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कैसे सोचना है। आई कांट स्पून फीड यू बिकॉज आई डोंट नो डूइंग दैट। सभी आपको बताते हैं क्या सोचना है, ऐसे सोचो वैसे सोचो, मैं बोलता हूं कैसे सोचना है। सो आई टेल यू टू टेक चार्ज। आई कैन नॉट गिव यू माई शोल्डर फॉर योर एस्पिरेशन, यू हैव टू यूज योर शोल्डर। सो दैट्स अ डिफरेंस। मुझे बहुत गालियां मिलता है, लड़के साले कमेंट डालते गंदा गंदा। I don't know what are you looking from me. I told you Air Force UP ka training is not for the bulk 98%. You are most welcome to go wherever they give you that shortcut. It is for that 2% people, growth mindset wale. This is not for everybody. Even some candidates who are in the online, they get frustrated. बोला सर इसमें तो बहुत सोचना पड़ रहा है। Yes, ऑफिसर बनना चाहते हो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर गालियाँ देते हैं, मुझे गाली मत दो, क्योंकि you are in the 98%. दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I will not change my approach. I will not change my approach. So this is not for Kuldeep. This is for all people who are putting those ulta pulta comment. No, अगर आपको अफसर बनना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ्रूट के पीछे मत भागो, रूट पे काम करो। When the root is strong, fruit will come. उल्टा मत करो। So आप गाली देना गाली दो, it does not matter to me. I will not change my approach. So that's the point. You know, मैंने अपने लाइफ में I have taken this wrong route.
तो कुलजीत तुम्हारे लिए भी शायद रूट लंबा है बिकॉज आप रूरल बैकग्राउंड के. डोंट थिंक द सक्सेस इज अ स्ट्रेट लाइन. नो, सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. मेरी अपनी जर्नी वॉज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ zigzag. देयर आर पीपल हु से कि वी विल मेक इट स्ट्रेट 5 days में, सिग्नेचर थिंग एंड ऑल दैट थिंग. आई कांट डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल. मुझे तो 3 महीने भी कम पड़ जाता बिकॉज आई वर्क ऑन द फाउंडेशन, नॉट शॉर्टकट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स. सो ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, A4 Soup is the wrong place to come. यहाँ पे फाउंडेशन इज SML एंड देन दिस. सो कुलजीत, चेंज योर फोकस, डोंट लुक फॉर दिस शॉर्टकट, बिल्कुल नहीं. सो यू नो एक कोट भी है, विनर्स वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस एंड अ लूजर वर्क्स टू फाइंड ए शॉर्टकट. सो एंड इफ यू कीप लुकिंग फॉर ए शॉर्टकट, आप देखते रह जाओगे, नहीं होगा. और इक्का दुक्का का हो भी गया, दैट डज नॉट बिकम द नॉर्म, है ना. इफ यू वांट टू क्लाइंब ए माउंटेन, डो नॉट लुक फॉर स्टेयर्स. आप तो स्टेयर्स भी नहीं, आप तो हेलीकॉप्टर देख रहे हो. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है? नीचे से चढ़ो ना अपने दम पे. सो ऑल ऑफ यू चेंज योर माइंडसेट. अगर करिकनाडु का ये लड़का, खम्मम डिस्ट्रिक्ट का ये लड़का अगर मजदूरी करके 80 रुपये पर डे कमा के IIT का इंजीनियर बन सकता है, तो एक ही कारण से बन सकता है, दृढ़ निश्चय और अपने ऊपर आत्मविश्वास. हालात से मत घबराओ. तुम्हारे पापा मम्मी गरीब है, अमीर है, गांव का, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मोदी जी वहां से लेके चाय बेच के अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आई थिंक दैट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. उनका एक वीडियो का मैं एक पोर्शन शेयर करूंगा जहां पे उन्होंने बोला, मुझे कभी भी क्या बोलते हैं, बिना काम के कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है. मैं काम ढूंढता रहता हूँ. आई मेक माई सेल्फ अनकंफर्टेबल. सो यू हैव टू लर्न टू बिकम कंफर्टेबल बाय मेकिंग यू अनकंफर्टेबल. चैलेंज योरसेल्फ. अपने आप को इतना चैलेंज करो, इतना चैलेंज करो कि अपने ग्रोथ जोन को बढ़ाते रहो, कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करते रहो. दैट इज द ओनली की टू सक्सेस. सो अगर कुलजीत दोबारा बोल रहा हूं, अगर दिस बॉय कैन डू इट, यू कैन डू इट. दोबारा लास्ट में, अपने लेवल को SSB या अपने ड्रीम के लेवल तक उठाओ, बजाय कि कंप्लेन करना कि उन्होंने इतना ऊंचा क्यों बनाया. नो, माउंट एवरेस्ट अपने आप को नीचे नहीं करेगा, तुमको अपने आप को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा वहां पहुंचना है. तो सो प्लीज डोंट क्वेश्चन डॉक्टर मानस के मंडल एंड DIPR कि उन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड क्यों सेट किया. यू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड. Don't ask them to reduce it. If you're passionate, increase your standard. Otherwise, this passion is simply a wish without an action plan. That's simply a dream. सपने देख रहे हो, सपने नहीं देखना. This is not only for Kuljit, for all people who are looking for shortcut. ठीक है ना. So these qualities are not to be acted. They can be worked upon. It can be done. Now one task for all of you. अगला वीडियो के लिए मेरे को इनपुट चाहिए. नोट करना ना कुलजीत, तुम ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारे वीडियो पे मैं बना रहा हूं. वन इज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सेकंड इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. व्हाट इज दिस? एंड यू नो कहते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न पे आप अगर फोकस करोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पाओगे. इसे मैं बोलता हूँ सर्प दृष्टि. लेकिन उसी जगह अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस कर दिया तो आपका, आप रूरल हो, अर्बन हो, लो कॉन्फिडेंस हो, हाई कॉन्फिडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. योर एबिलिटी टू यू नो क्रिएट पॉसिबिलिटीज विल इंक्रीज. सो इसको समझने के लिए एक रेफरेंस बुक भी दे देता हूँ, अगर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. नाउ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये जो बुक होगा आपके पास होगा. इसका ये ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन में पता नहीं. इसमें पेज नंबर 81 में इसके ऊपर है. तो आई वॉन्ट यू टू रीड दैट और मे बी गो थ्रू द यूट्यूब. तो आई वॉन्ट नेक्स्ट जो ना, ये ना मैंने जो सिलेबस ऑफ SSB की बात कर रहा हूँ, विल सी व्हाट इज दैट सिलेबस. बट बिफोर दैट I want this information. What do you mean by circle of concern and circle of influence? Page number 81 of the old book, 7 Habits of Highly Effective People. Everybody in the SSB claims कि हमने ये बुक पढ़ा है. अगर पढ़ने से क्या होता है? Have you implemented even a portion of that in you? बुक पढ़ लिया, पेज पढ़ लिया. No, पेज पढ़ने से नहीं चलेगा. You have to take at least one aspect of it and try and implement it. So I want a feedback. 2 थिंग्स मैंने पहले भी बोला था, पर्सनालिटी असेसमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डिफरेंस. सेकंड इज व्हाट इज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड व्हाट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड कुलजीत, आई वांट योर इनपुट स्पेसिफिकली बिकॉज आपके वीडियो पे ये मैं बना रहा हूँ. सो स्टीफन कोवेज का पेज नंबर 81, गिव मी अ फीडबैक. एंड नाउ ये जो मैंने बताया था, कल जो मेरा इवेंट है 16 जुलाई 2020 11:30
at Rajshri Sahu Engineering College. The timing is 11:30 a.m. Now the password and the meeting ID at 11:30 a.m. itself. I'll put it in the A4CP Telegram channel. A4CP Telegram channel का जो link है, I'll give it here. Now I'm giving it at the last moment because last time क्या हुआ था, similarly another college had permitted, उनके बच्चे नहीं आ पाए, उतने बाहर से बच्चे आ गए. So please make sure you join it after 11:40. तो मैं 11:30 को शेयर कर दूंगा, बट ऑल दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दिस कॉलेज जॉइन ओनली एट 11:40 सो दैट देयर पीपल आर एबल टू कम इनसाइड. लास्ट टाइम वी हैड अ प्रॉब्लम कि बाहर वाले इतने आ गए, तो दे सेड कि सर विल नॉट अलाउ. आई रिक्वेस्टेड कि सर आई एम कंडक्टिंग दीज क्लासेस. दीज आर फ्रॉम द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस है, एंड दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड स्वॉट एनालिसिस. सेल्फ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा, स्वॉट एनालिसिस रेस्ट ऑफ यू जो लोग नहीं ज्वाइन करते हो वो कभी फ्री बैच होगा तो उसमें वो कर सकते हैं. सो टेलीग्राम चैनल पे यू कैन डू दैट. उसके अलावा 2 वीक्स के जो क्लासेस है, नेक्स्ट A4CP क्लासेस स्टार्टिंग ऑन 20 जून टू 1 अगस्त, मंडे से लेके सैटरडे तक 8 PM to 10 PM. नेक्स्ट उसके बाद का 27 to 8, 3rd September to 15 September, 17 September to 29 September. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 8275577650 is the number on which you have to WhatsApp. And similarly, if you want to attend a free gap analysis on these dates, 20 June, 27 August, 3rd September and 17 September, 7:30 PM. 7:30 PM, you can send me a WhatsApp message on Monday and I'll send you the details. You can attend the free workshop. And finally, let me again repeat it to all of you, including Kuljit. One of the greatest lessons I have learned in my life is to pay as much attention to the means of work as to its end. And it appears to me that all the secret of success is there, to pay as much attention to the means as to the end. So इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके दिमाग में गड़ जाना चाहिए. दिस हैज़ टू बी द न्यू बिलीफ सिस्टम ऑन विच वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बोथ फॉर SSB एंड लाइफ. बहुत हो गया ये कहानियां रटना, TAT डेड बॉडी का ड्रामा. लेट्स चेंज दैट बिलीफ सिस्टम. अनलेस वी चेंज दैट बिलीफ सिस्टम, न्यू पिलर्स विल नॉट कम. सो इसको मैं बार बार इसलिए रीड करता हूँ ताकि ये बात आपके जहन में घुस जाए. और ये कोई मेरी बात और नहीं है, ये स्वामी विवेकानंदा जी बोल रहे हैं, है ना. टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स एज टू द एंड. टुडे वी हैव गॉट अटैच्ड टू द एंड एंड नॉट एबल टू फोकस ऑन द मीन्स. सो दैट्स द एम. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.